So today we are going to discuss the last chapter of Bhagavad Gita, that is conclusion, the perfection of renunciation. So this is the last chapter and the longest chapter. This is the biggest chapter, having 78 verses. So in this chapter, Krishna is going to conclude everything what he has spoken till now. So in essence, in conclusion, Krishna will give us the highest instruction, what is to be followed. So this chapter becomes very, very important because this is the last chapter of Bhagavad Gita. So we'll discuss. So Arjuna will ask question. This chapter starts with question by Arjun, that what is renunciation and what is the purpose of renunciation. Why do we renounce anything, and what is the purpose of renunciation? So this chapter starts with renunciation, tyaga. So Krishna explains very nicely that how without renunciation we can never become happy. So it is a must in human form of life. Renunciation, tyaga is very, very important, integral part of human form of life. So unless we learn to renounce, we will be attached to material things and our suffering will continue in this world. Because as we have discussed in 5th chapter, also in 15th chapter, Krishna has every now and then he has said that we are suffering because of attachment to the material worlds, because we are very much attached to the things, objects, situations, circumstances. So therefore, because of that attachment, we are suffering. So renunciation is very important. We are attached to the results, we are attached to the fruits of the action, whatever we perform. We are attached to so many things, our liking, disliking. So therefore, it becomes very, very important in human form of life to learn what is renunciation and how to renounce. So this is very important. Therefore, the famous verse you all know, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja. Krishna says that give up everything. Everything means Krishna is saying everything. Sarva Dharman Parityajya. Krishna does not say Tyajya. He says Parityajya means completely you renounce everything and surrender unto me. So what is renunciation? People think that renunciation means giving up everything. Physically, we have to give up everything and go to the Himalaya. That is the, conventional understanding, but actually that is not the renunciation. We'll understand in this chapter what is actually renunciation. So let us start with prayers. We'll embark on the most important chapter, 18th chapter. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Kathanchan Smrite Yasmin Duskaram Sukaram Bhavet Vismrite Viparitam Sat Shri Chaitanya Namamitam Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Nitai Gaurang ki jai, Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. So in this chapter we are going to discuss each and every verse, because all the verses Krishna is giving something which is very important for all of us to understand and follow. So I'm going to share the chapter itself, Veda base. So you can see on your screen
18th chapter, the conclusion, perfection of renunciation. So verse by verse we'll go forward, and all of you have to very attentively hear each and every verse very nicely and try to assimilate. So Arjuna is asking question. Sanyas Arjuna vacha sanyasasya mahabaho tattvamechhami veditum tyagasya cha rishikesha prithakkeshi nishudana. So Arjuna is asking. Arjuna said, O mighty armed one, I wish to understand the purpose of renunciation, means tyaga. What is the purpose of renunciation? And of the renounced order of life, sannyas, O killer of the demon, Keshi demon, Rishikesh. So Krishna is addressed with different names. So here Krishna is being addressed as Keshi, the killer of Keshi demon. Rishikesha also. Arjuna is addressing with the two names to Krishna, Rishikesha and Keshi Nishudina. So the question of Arjuna is, what is purpose of renunciation and what is renounced order of life? As we understand, there are 4 orders of human life, 4 varnas and 4 ashram. So 4 ashram kya hai? Brahmachari, Grihasth, Vanaprasth and Sannyas. So Sannyas is the 4th order of human life. जो सोसाइटी का 4th ऑर्डर है वो संन्यास है. So it is recommended that panchas ordhvam vanam vrajet. So after 50 years, when we are on our peak of success, we have everything, we have accumulated everything, all the wealth, all the recognition, name, fame. People think that now time is to retire and enjoy, bhog karo. But actually it is recommended that that's the time to retire and actually take sannyas. Sannyas, panchasordham vanam vrajati. You go to forest or go to Vrindavan. So literally speaking, what is literal meaning is you have to go to Vrindavan. You have to go to one jungle, forest. But the practical understanding is now the time is to completely devote yourself in worshipping the Supreme Lord, renouncing from all other engagements, whatever you have attached to. So you give up all those things and now completely get absorbed in the devotional practices. So that is the renounced order. So Arjuna is asking direct questions. So Krishna is saying, Sri Bhagavan Uvacha, Kamyanam Karmanam Nyasam Sannyasam Kavayo Viduhu Sarva Karma Phala Tyagam Prahus Tyagam Vichakshana. The Supreme Lord said, to give up the results of all activities is called renunciation, Tyaga, by the wise. And that state is called the renounced order of life, sannyas, by great learned men. So even just see, Krishna is also referring the great learned men, the wise men. Krishna is saying to give up the results of all activities. So Krishna is not saying that you give up the activities. Krishna is saying you give up the results of the activities. So that is very important. Verse में आप देखेंगे सर्व कर्म फल त्यागम. So third line you can see सर्व कर्म फल त्याग मीन्स नॉट 1 or 2 कर्म के फल को त्यागना है, सभी प्रकार के जो कर्म है उसके फल को त्याग देना हमें. ये संन्यास है और ये हमें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. बिकॉज एज वी हैव डिस्कस्ड दैट विदाउट रिनंसिएशन वी कैन नेवर बी हैप्पी. क्योंकि रिनाउंस नहीं करेंगे तो अटैच रहेंगे, एंड अटैच रहेंगे तो चीजें टेम्परेरी है. एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड and we are bound to get separated. And if you are very much attached and you get separated, then so much suffering is there. And if unless we have learned to develop detachment, we can never be happy. So हमें पहले से ही detachment develop करना है, जिससे कि चीज रहे या ना रहे. We should be attached to Krishna, who is always going to be there with us. So there is no question of suffering if we are attached to Krishna. So Krishna हमारे साथ हमेशा रहेंगे, तो कभी ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगा जहां पर हम सेपरेट हो गए कृष्णा से और हम दुखी हैं. तो कृष्णा और आत्मा साथ साथ रहती है, 2 बर्ड्स के जैसे. आत्मा एंड परमात्मा, they are always there together. When you chant Krishna's name, Krishna is there.
So therefore it is recommended you develop attachment to Krishna and renounce the result of your activities. Here Krishna is not asking to renounce the activities, but Krishna is saying you renounce the result of activity, and that is called renunciation. So जैसे कल हम लोगों ने एक न्यूज पढ़ा था ओलंपिक में, जो मनु भकेर करके वो जो लड़की थी वो ब्रॉन्ज ले आई चैंप ओलंपिक में. So when a reporter asked what was going on in your mind when you are in at peak of your time, you are shooting that time, what was going on in your mind? So she very clearly spontaneously spoke up that actually I have read Bhagavad Gita too much, and all the instructions which I have read in Bhagavad Gita, that was going on in my mind, and that was giving me enthusiasm and focus to do my activity very nicely without getting attached to the results. So that's what here every now and then Krishna is speaking. Just see here also same instruction. Give the results of your activity. You do your activity. Don't get attached to the results of your activity. Just do your duty in the best course, whatever you can do. So ये बहुत important है. तो जो मनु भकेर ने बोला, that was very practical instruction, and ये हम तभी कर सकते हैं practice जब हमने अच्छे से पढ़ा समझा. That's what she said. I have read a lot. उसने बोला I have read a lot the Bhagavad Gita. So ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए बस हो गया. तो भगवद गीता कोई ये theoretical book नहीं है कि हाँ एक बार तो पढ़ लिया है. इसको बार बार पढ़ना है, ये हमारे माइंड में सेट हो जाए, जिससे कि always our duty with the instruction of Bhagavad Gita in the background. हमारे बैकग्राउंड में भगवद गीता इंस्ट्रक्शन है, वो हमें गाइड करे, वो हमें बैक्ड करे, और उसके गाइडेंस से इंस्पिरेशन से हमें सारी एक्टिविटी करनी. एक बार पढ़ने से नहीं होता, 10 बार भगवद गीता पढ़ेंगे तब भी जाके आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं क्लियर होगी. जो इसकी फाइन ट्यूनिंग है, फाइन डिटेल्स, फाइन अंडरस्टैंडिंग जो भगवान दे रहे हैं, हमें लग सकता है अरे हाँ ठीक है ये तो समझ आ गया, बट एक्चुअली में नहीं समझ में आया. जब हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना उतना इसमें रियलाइजेशन रेवलेशंस आएंगे. नॉलेज विल बी रिवील्ड to you, fine things will be revealed. So therefore we should keep on reading. एक बार हो गया, दोबारा तिबारा. So we should go on hearing and reading. Then only we can, at peak time when time is very crucial, that time your mind becomes blocked, right? जैसे हम देखते हैं क्रिकेट वगैरह में, जब इंडिया स्पेशली हारने लगती है तो सब बौखला जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बॉल पता नहीं कहाँ फेंकते हैं, मिस फील्ड होता, कैच छूटता, क्योंकि एंजाइटी में रहते हैं, बहुत एंजाइटी, ओवर बर्डन हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आता. दैट शुड नॉट हैपन. सो उस समय तभी आप भगवद गीता प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपने बहुत अच्छे से समझ रखा है, पढ़ रखा, बार बार पढ़ा आपने, तभी वो इंस्ट्रक्शंस आएंगे और आप अपना कंपोजर मेंटेन कर पाओगे. अदरवाइज इट इज नॉट सो इजी. डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, हालत खराब हो जाती है, और जैसे ही आप इफेक्ट हो गए आपका परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो जाता है. दिस इज वेरी सटल साइंस. So everyone should understand Bhagavad Gita. In fact, not only this Manu, all the players, everyone who is doing some kind of activity which is having so much of attention, जिस पे बहुत सारे लोगों का attention है. तो स्पेशली जब बहुत सारे लोग अटेंशन डाल देते हैं किसी चीज पे, जैसे क्रिकेट वगैरह हो गया, सो क्रिकेटर्स की हालत खराब हो जाती है. कितने सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, और यहाँ 2 लोग आपके फादर आ जाएं आपके पास, आप कुछ काम कर रहे हो टास्क, हम उसी में डिस्टर्ब हो जाते हैं. एक फादर आ जाते हैं उसी में. अब सोचो इतने सारे लोग अगर आपको फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, सो नेचुरली हमारे अंदर वो एंजाइटी आ जाती है. सो भगवद गीता का ये जो इंस्ट्रक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अगर प्रैक्टिस नहीं किए, समझे नहीं, सो विल फेल, विल डेफिनेटली फेल. सो हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ये सब लाइटली ना लें. हमें ये हम ना सोचे कि हाँ मैंने पढ़ा है, समझा. बार बार हियर करना, बार बार. इसलिए कृष्णा ने 7th चैप्टर स्टार्टिंग में ही बोल दिया, पहला श्लोक, तत् शृणु, नाउ हियर फ्रॉम मी. सो हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियरिंग से ही रियलाइजेशन आता है. बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, सुनते 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 becomes hearing becomes realization, knowledge becomes realization. सुनना और पढ़ना. So that's what here Krishna is saying, to give up the results of all activities called renunciation, and that state is called renounced order of life. So actually में जो मनु का एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं,
सो कॉन्शियसनेस का खेल है। आप भले ही एक्टिविटी कर रहे हो, आप हो सकता है सैफ्रॉन रोब में नहीं हो, पैंट शर्ट में हो, लेकिन अगर आपकी कॉन्शियसनेस ये पहली लाइन को फॉलो कर रही है, सो यू आर एक्चुअली रिनाउंस्ड, यू आर इन द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ। नो नीड टू फिजिकली गिव अप योर होम, सोसाइटी एंड गो टू द फॉरेस्ट, नथिंग, नो रिक्वायर्ड। ये कॉन्शियसनेस को हमें चेंज करना है। बस कॉन्शियसनेस में हमारी ये होना चाहिए कि जो मैं ड्यूटी कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, ये इसका रिजल्ट से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी, रिजल्ट इज इन द हैंड ऑफ कृष्णा। इफ ही गिव्स देन आई एम हैप्पी, इफ ही डज नॉट गिव देन आल्सो आई एम ओके। सो ये जब अगर आपकी कॉन्शियसनेस है, तो वो स्टेट ऑफ लाइफ बिकम्स रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। यही है रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, यही सन्यास। और कोई चीज, कोई बड़ा तोप नहीं है सन्यास, सब कुछ छोड़ के हिमालय जाना नहीं। अगर आप घर पे भी रह के ये पहली लाइन को फॉलो कर रहे हैं, गिव ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। रिजल्ट को हम नहीं ले, हम चुरा लेते हैं। जनरल रिजल्ट को चुरा के अपने बैग पॉकेट में डाल लेते। पॉकेट में डालने के बजाय हमें आगे भी आएगा कृष्णा और बोलेंगे, हमें कृष्णा को देना है। सो अगर ये मेंटल स्टेट है हमारा, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। दैट्स ऑल, यही है बस। तो जो लास्ट वर्स सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्णा बोल रहे हैं, उसमें भी उसका भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो हम मेंटली चीजों से अटैच है, उसको सबको गिव अप करना है। फिजिकली गिव अप करने की जरूरत नहीं है, मेंटली हमें कॉन्शियसनेस वाइज हमें भगवान से केवल अटैच रहना है, और अपनी ड्यूटी जो भी हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो हम करते रहें, यही है परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब कि कॉन्शियसनेस में हमें सर्वधर्मान परित्यज्य करना, एक्सटर्नली नहीं। जनरली लोग एक्सटर्नली करते हैं और इंटरनली पूरा अटैच रहते हैं। सो ये हमें समझने की बात है। फिर कृष्णा क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शन आएंगे इसमें, आप लोग बहुत ही पेशेंटली सुनो। सम लर्नेड मेन डिक्लेयर दैट ऑल काइंड्स ऑफ रूटिव एक्टिविटी शुड बी गिवन अप। सो कुछ लोग बोलते हैं कि सारी एक्टिविटी गिव अप कर दो, कुछ लर्नेड मैन कुछ लोग हैं ऐसा बोलते हैं। बट देर आर येट अदर सेजेस हु मेंटेन दैट एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड पेनेंस शुड नेवर बी अबैंडन्ड। तो अगर आप लोग को याद है, तो 17 चैप्टर में ये तीनों चीज हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। सैक्रिफाइस, यज्ञ, दान और तपा, ये तीनों चीज, और फूड के बारे में भी। सो फूड, यज्ञ, दान, तप, 3 मोड्स से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कृष्णा कि ये तीनों चीज को कुछ लोग बोलते हैं रिनाउंस कर दो, कुछ लोग बोलते हैं रिनाउंस नहीं करना चाहिए। तो अब लेकिन कृष्णा क्या बोल रहे हैं, लेट अस सी दैट व्हाट कृष्णा इज। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। कृष्ण is saying, O best of the Bharatas, hear from me now about renunciation. So कृष्णा ने अभी तो वाइज मैन क्या बोलते हैं, सेजेस क्या बोलते हैं, ये बताया। अब कृष्णा who is the ultimate authority, as we have heard, Krishna is supreme personality of Godhead. Till now we have understood this. Now Krishna is speaking, so that is the most important instruction. So Krishna says, O tiger among men, there are 3 kinds of renunciation declared in the scriptures. 3 kinds of renunciation. क्या क्या हमें रिनाउंस करना है, कृष्णा बता रहे हैं। बहुत ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग प्रैक्टिस करना। यज्ञ, दान, तपः, कर्म। अगेन 17 चैप्टर में जो था ना, वही फिर से कृष्णा बोल रहे हैं। यज्ञ, दान, तपः, कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। Krishna is saying, acts of sacrifice, charity and penance are not to be given up. मतलब इसको छोड़ना नहीं है कभी, सैक्रिफाइस को कभी नहीं छोड़ना है, चैरिटी नहीं कभी बंद करना है, एंड पेनांस कभी नहीं छोड़ना है, बट शुड बी परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म करना है। कृष्णा बोल रहे, इंडीड सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड पेनांस प्यूरिफाई इवन द ग्रेट सोल्स। सो ऐसा नहीं है कि एक समय आएगा जब हम एक गिव अप कर देंगे, हम जब बहुत लिबरेटेड हो गए, नहीं। इनफैक्ट कृष्णा इज सेइंग, इवन द ग्रेट ग्रेट सोल्स आल्सो गेट प्यूरिफाइड बाय फॉलोइंग दिस एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड पेनेंस। इसको करने से बड़े बड़े सोल्स भी, ग्रेट ग्रेट सोल्स भी प्यूरिफाई हो जाते हैं। सो सैक्रिफाइस यज्ञ होता है, चैरिटी मीन्स डोनेशन, पेनांस मीन्स ऑस्टेरिटी। सो सैक्रिफाइस क्या, यज्ञ, यज्ञ हमें करना चाहिए डेली बेसिस पे, चैरिटी हमें करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, एंड पेनांस हमें करना चाहिए रेगुलर बेसिस। सो ये तीनों हमारे लाइफ ऑफ फाउंडेशन है, इसलिए बार बार 17 चैप्टर में भी आया था, 18 चैप्टर कंक्लूजन में भी आ रहा है।
तो ये 3 चीज अगर हमारे लाइफ में नहीं है ना, सो हम कभी भी खुश नहीं हो सकते. This is the foundation of our life. Human form of life stands on this foundation. Sacrifice करना ही पड़ेगा अगर आपको खुश होना है तो. Without sacrifice, you forget that there will be happiness. What is sacrifice? यज्ञ क्या है? यज्ञ करना ही है. 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र. हमें कर्म करना है यज्ञ के जैसे. यज्ञ मतलब क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी भगवान के सैटिस्फैक्शन के लिए करें, वही यज्ञ है. So chanting is told as संकीर्तन यज्ञ for कलयुगा. So कलयुग का जो यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ है. So हम चैंटिंग रेगुलर बेसिस पे करें, यही यज्ञ है. अगर हम चैंटिंग बंद कर दे रहे हैं या चैंटिंग नहीं करते हैं, so we'll never be happy. यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं सैक्रिफाइस अगर बंद कर दिया तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे. और चैरिटी, once we start earning, so we should never stop charity. We should go on doing charity. Charity, Krishna has emphasized many places. In 3rd chapter also, Krishna said, 7th chapter, 9th chapter, every now and then. Now in conclusion also, Krishna is saying charity. Krishna says 9th chapter, यत करोसि यद अस्नासि यद जो होसि ददासि यत. जो भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, मुझे ऑफर करते हुए करो. So charity को कभी बंद नहीं करना. And penance means तपस्या. तपस्या जरूर करनी. तपस्या means taking voluntary trouble in our life. Voluntarily taking trouble. Like getting up early in the morning is tapasya. Mind is saying something to eat or something to watch or something to do. But if it is not aligned with the scriptures, then we should not do that. That is called tapasya. तपस्या में माइंड को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा होता है. सो माइंड बोलेगा करो करो, क्योंकि मन तो उससे अटैच्ड है ना. लेकिन आपको पता है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है. In long term it is not good for me, but mind is, because it is attached, so mind is saying do. So voluntarily giving up, that activity is called tapasya. So ये हमें करना चाहिए. We should do this. We should learn this tapasya. So even Lord Rishabhdeva in 5th canto Srimad Bhagavatam, he explains tapo divyam putraka yena sattvam suddhyet. हमें तपस्या क्यों करनी चाहिए? To purify our existence. If we don't perform tapasya, we can never become purified of the contaminations. तो उसमें ऋषभदेव बताते हैं we should not work hard. Anyway we have to do तपस्या. बाहर की दुनिया में देखो आदमी कितना रात दिन एक कर मेहनत कर रहा है, ये तपस्या कर रहा है, वो कर रहा है, उसको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, ये करना वो करना. पीपल आर डूइंग एक्चुअली तपस्या, बट ये ऐसी तपस्या नहीं करनी. ऐसी तपस्या तमोगुण की तपस्या है, जो हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी 17 चैप्टर में आ चुका है. तमोगुण की तपस्या नहीं करनी है जिसमें इस बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण ऐसे लोगों ने किया था. हमें सत्वगुण की तपस्या करनी है. तमोगुण की तपस्या जैसे सुअर, ये जानवर लोग, गधा तपस्या करता है, बहुत तपस्या करता है, लेकिन तमोगुण की तपस्या है, कोई रिजल्ट नहीं मिलता उसको. कुछ गधा का नहीं है, सुअर दिन भर लगा रहता है. इसलिए ऋषभदेव बोल रहे हैं कि नायम देहो देह भाजामि निर्लोके कष्टान कामान रहते विडभुजामि. इतना कष्ट नहीं लेना है इंद्रिय तृप्ति के लिए जैसे सुअर और कुत्ते, जो स्टूल ईटर एनिमल हैं, especially hog and dog, they are working so hard for sense gratification. So we should also similarly not work very hard for the same standard of happiness. We should work hard. We should do tapasya to purify your existence. So tapasya तो सब जगह बोला गया है, करना ही पड़ेगा हमें. मटीरियल एक्टिविटीज में भी तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी में भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए तपस्या करेंगे, तो मटीरियल लाइफ में हमें तपस्या ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा. वो भगवान की ब्लेसिंग से बहुत इजीली हमें मिल जाएगा. अदरवाइज यू गो ऑन वर्किंग हार्ड लाइक एस एंड यू विल नॉट गेट if it is not destined. As we understand in 13th chapter, Krishna is there seated in our heart as Paramatma, and he is overseeing our activity, and he is sanctioner. He is sanctioning our activity. So this is happening with material person. Materialistic person के heart में भगवान बैठ के देख रहे हैं और sanction कर रहे हैं उसके desires को based on destiny. Destiny में है तो sanction करेंगे, destiny में नहीं है तो sanction नहीं करेंगे. लेकिन डिओटी के केस में एक और एक्टिविटी करते हैं, क्या? Sanctioner, witnesser and director. Krishna directs the devotees. One who is chanting Hare Krishna, one who is devotee of Krishna. भागवतम ये रेवलेशन आता है, कृष्णा he directs the devotee. अभी क्या करना है, अब क्या करना है, now what you should do.
In Bhagavad Gita also Krishna says, no, dadami buddhi yogam tam. You remember that verse? ये नमाम उपयांति ते चतुश्लोकी भगवद गीता का जो सेकंड वर्स है 10.9 तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम. So Lord gives intelligence. So if for devotee Krishna is director also. So इसलिए हमें devotee बनना है. हमारे लिए भगवान स्पेशली फेवरेबल है. दो चीज तो सबके लिए करेंगे लेकिन devotees के लिए डायरेक्टर हैं भगवान. So डायरेक्ट करते हैं. Then Krishna says, all these activities should be performed without any expectation of result. ये सब तीनों चीज हमें करना है क्या? यज्ञ, दान और तप, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट. कभी कभी हम सैक्रिफाइस करते हैं, लोग करते हैं, जैसे इंडिया में बहुत चलता है ये कर्म कांडा सेक्शन में, लोग सब स्वर्ग में जाने के लिए, वहां पर हेवनली प्लैनेट्स में एंजॉय करने के लिए. सो इसके लिए नहीं करना चाहिए. कृष्णा बोल रहे हैं मत करो इसके लिए. और दान भी लोग करते हैं, जिससे कि हम आज 10,000 देंगे तो कल हमें 1,00,000 रुपए मिलेगा रिटर्न में, क्योंकि लोगों को पता है. स्पेशली यू विल सी इन जैन कम्युनिटी और इन बिजनेस क्लास कम्युनिटी, जैसे अग्रवाल, ये गुप्ता, ये लोग दे नो दिस साइंस वेरी नाइसली दैट व्हेन वी गिव चैरिटी in the temple or to the needy people or especially in गौशाला में चैरिटी करने से, so you get in return 1,000 times and this is a fact. आप चैरिटी करते हैं ना, जैसे गौशाला में या टेम्पल में, इस तरीके से, तो आपको 10,000 मिलियन टाइम्स ज्यादा आपको मिलता है. आप 10,000 देंगे, आपको भगवान की इतनी कृपा होगी, क्योंकि ये पायस एक्टिविटी है ना, पुण्य कर्म है ये. तो जितना आप पुण्य करते हैं उतना आप रिच होते हैं. तो ये साइंस पता है. इसलिए आप देखेंगे जैन कम्युनिटी दे आर वेरी मच इनक्लाइंड टू डोनेशन टू गौशाला में एंड टेम्पल में, इस तरीके से दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो दिस. लेकिन यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं कि ये सब करना तो चाहिए, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि हमें रिजल्ट में और पैसा मिलेगा और धन संपदा मिलेगी, नहीं. एंड तपस्या हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें नेम फेम मिले, हमें सिद्धियां मिले, जैसे रावण ने तपस्या किया, सिद्धि प्राप्त कर ली उसने. सो इसके लिए हमें तपस्या नहीं करनी चाहिए. सो वी शुड डू ऑल दिस थ्री थिंग्स फॉर सैटिस्फाइंग कृष्णा. जस्ट लाइक Ambarish Maharaj was absorbed. He was completely absorbed. All the senses was absorbed. His mind was absorbed. His legs were absorbed in Krishna without expectation of anything. All the devotees, Srila Prabhupada is the best example. He did not expect anything, and he just served Krishna unreserved, without any reservation, without any personal motivation. Prabhupada served Krishna. They should be performed as a matter of duty, O son of Pritha. That is my final opinion. यहाँ कृष्णा क्या बोल रहे हैं? That is Krishna's final opinion, that we should be, these three things should be performed as a matter of duty. So ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, प्रैक्टिकल हमें फॉलो करना है. ये तभी होगा जब हम रेगुलर चैंटिंग करेंगे. रेगुलर चैंटिंग एंड हियरिंग, these two things are very important. Hearing बहुत important है. Hearing and chanting जब करेंगे, hearing means reading Bhagavad Gita, hearing the lectures of Prabhupada, Bhagavad Gita का lecture सुनना, and chanting attentively, बहुत ही focused होकर chanting करेंगे, तब ये सारे instruction हम follow कर पाएंगे. और ये जब once you start following these instructions, no, your life becomes so blissful, you become so happy, you don't get disturbed. Then Krishna says, prescribed duties should never be renounced. अब यहाँ पर कृष्णा क्या बोल रहे हैं? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के लिए, कि कभी भी हमें अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो रिनाउंस नहीं करना चाहिए. If by illusion one gives up his prescribed duties, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. So एक ignorant man ही अपनी ड्यूटी को रिनाउंस करता है. कभी कभी क्या होता है, हमें जैसे मान लो कोई ड्यूटी है, उसमें बहुत मेहनत है और बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम सोचते हैं अरे छोड़ो यार, रिनाउंस कर देते. सो नहीं रिनाउंस करना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज. यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं वी शुड गो ऑन डूइंग आवर ड्यूटीज, बट वी शुड रिनाउंस द रिजल्ट. देखो कृष्णा दोनों चीज क्लियर कर रहे हैं. प्रिस्क्राइब ड्यूटी शुड नेवर बी रिनाउंस. तो रिनाउंसिएशन मतलब ये नहीं है कि ड्यूटी ही रिनाउंस कर दो, नहीं. रिजल्ट आप याद करो, सर्व कर्म फल त्यागम, आहुस त्यागम विचक्षणा. दोज विचक्षणा, दोज हु आर इंटेलिजेंट वाइज मैन, they renounce the result, not the prescribed duties. So कभी कभी होता है जनरली जब हम फेड अप हो जाते हैं या जॉब में कोई प्रॉब्लम, चैलेंज, बॉस कुछ करता है, तो हम बोलते हैं प्रभु अच्छा, और हम कृष्णा कॉन्शियस फॉलो करते हैं पैरेलली, और हमें समझ में आ गया कि सब जो है अल्टीमेटली सब माया है, सब टेम्परेरी है.
और फिर भक्ति में भी टेस्ट आने लगता है, 4 महीने 6 महीने हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये यहाँ फिलॉसफी समझ लेते हैं कि एवरीथिंग इज मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी, वी हैव टू गो बैक टू कृष्ण एंड ऑल, हमें सरेंडर करना भगवान को। और उधर पैरेलली उनके जॉब में कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस चल रहे हैं। सो फिर आके बोलते हैं प्रभु जॉब में मैं सोच रहा हूँ रिनाउंस कर दूं, गिव अप कर दूं, ज्वाइनिंग कर लेता हूँ, आश्रम ज्वाइन कर लेता हूँ, मंदिर ज्वाइन कर लेता हूँ। सो अगर आप मंदिर ज्वाइन करना चाहते हैं या उसको आप अपनी जॉब को छोड़ना चाहते हैं इसलिए क्योंकि वहां पर चैलेंज है, वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए आपको लग रहा है यहाँ पर तो बड़ा अच्छे से आराम से रहेगा, आश्रम में कोई ज्यादा चैलेंज, कोई अच्छा बहुत स्मूथ लाइफ रहेगा, बहुत पीसफुल लाइफ रहेगा। तो अगर इस मेंटालिटी से हम ज्वाइन करते हैं आश्रम या हमारा मेंटालिटी है रिनंसिएशन का, तो दैट इज said to be in the mode of ignorance. ये this is not recommended by Krishna here. That renunciation, renounce तो करना है लेकिन रिजल्ट को रिनाउंस करना, ड्यूटीज को ही रिनाउंस नहीं करना। और अगर जैसे टेम्पल भी ज्वाइन करना है तो इस भाव से नहीं कि प्रॉब्लम चल रहे बाहर इसलिए आओ, नहीं, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से आना चाहिए ज्वाइन करना चाहिए। आश्रम भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहिए, व्हाट इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं कि अंदर आके पीसफुल रहेगा, अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो अगर आपने ये सोच के कि भाई बाहर चैलेंज अंदर आ जाए और आप आ गए, यहाँ भी चैलेंज हो, यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ चैलेंज नहीं, सब जगह चैलेंज है, मटेरियल और एवरीवेयर देयर इज चैलेंज। सो यहाँ भी, यहाँ से ही भाग जाओगे फिर आश्रम से 1 महीने 2 महीने, अरे यार यहाँ भी चैलेंज, तो यहाँ से ही भाग के कहीं। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग राइट नहीं। देयरफॉर कृष्णा इज सेइंग डोंट गिव अप योर ड्यूटी आउट ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में हमें अपनी ड्यूटी रिनाउंस नहीं करना। Anyone who gives up prescribed duties as troublesome or out of fear is said to be in mode of passion. So रजोगुण में अभी क्या कृष्णा अगेन 3 गुणों के बेसिस पे हर एक चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। तो हर एक एक्टिविटीज में 3 गुणों का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। जैसा कि हम लोगों ने 14 चैप्टर में पढ़ा है कि हमारी सारी एक्टिव, हम पूरे, हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी कॉन्शियसनेस, हर एक एक्टिविटी 3 गुणों से प्रभावित है। सो हमारा एक्शन भी, हमारा चार जो भी हम कर रहे हैं सब 3 गुणों से इन्फ्लुएंस है। सो यहाँ पर अगर हम ड्यूटीज को ट्रबलसम देख के, फियर, डर लग रहा है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, तो ये रजोगुण का जो रिनंसिएशन है, that is in the mode of passion. Such action never leads to the elevation of renunciation. ये एक्शन कभी आपको परफेक्शन अचीव नहीं कराएगा। Then Krishna says, but he who performs his prescribed duty only because it ought to be done. ड्यूटी करनी है क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है, and renounce all attachments to the fruits. His renunciation is the nature of goodness. तो ये रिनंसिएशन हमें करना, ड्यूटी को रिनाउंस नहीं करना। ड्यूटी हैज टू बी परफॉर्म्ड एंड रिनाउंस द अटैचमेंट ऑफ द फ्रूट। सो रिनाउंसिएशन किससे होना है? अटैचमेंट टू द फ्रूट। ये हमें बहुत ही बार बार कृष्णा बोल रहे हैं, अभी पहले, इससे पहले ही बोल दिए थे, अभी फिर से बोल रहे हैं। सो हमें ये माइंड में बहुत अच्छे से रजिस्टर करना है। Then Krishna says, those who are situated in the mode of goodness, who neither hate inauspicious work nor attached to auspicious work, have no doubts about work. It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities. Yes, this is fact. हम फ्री नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करेंगे, इसलिए एक्टिविटीज करना है। और फिर क्या बोल रहे हैं आगे? Therefore it is said that he who renounces the fruits of action is one who has truly renounced. So यहाँ पर फिर से डेफिनेशन दे रहे हैं भगवान। True renunciation means not giving up the activities but to give up the fruits of activities. For one who is not renounced. अच्छा, अब जो renunciation नहीं कर रहा, जो renounce नहीं कर रहा, उसको क्या बोल रहे हैं भगवान? उसके लिए क्या है इंस्ट्रक्शन? For one who is not renounced, the threefold fruits of action, desirable, undesirable and mixed, accrue after death. So अगर आप attached हो, renounce नहीं हो, तो रिजल्ट आएगा कैसा आएगा? या तो डिजायरेबल अच्छा, या अनडिजायरेबल अच्छा नहीं, या मिक्स आएगा, दोनों का। और ये तीनों आपको आफ्टर डेथ ये रिएक्शन आएगा। They will accrue after death. But those who are in the renounced order of life have no such results to suffer or enjoy. So अगर हम फ्रूट से अटैच होके एक्टिविटी कर रहे हैं, so उसका रिजल्ट, रिएक्शन जो आएगा हमें डेथ के बाद भोगना पड़ेगा। गलत कर्म कर रहे हैं तो हमें गलत रिएक्शन आएगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा रिएक्शन आएगा। बट अच्छे रिएक्शन में भी आपको बॉडी तो लेना ही पड़ेगा, और बॉडी मिल गई, यू हैव गॉट दिस बॉडी,
then suffering begins. The suffering begins with the body. So therefore, we have to, in this human form of life, we have to come to that level that no more material body in the next life. We should get a spiritual body, because the moment you get material body, suffering begins. असन अपि क्लेशदा आस देहा, ये जो देह है ना, ये जो शरीर है, यही दुख देता है. तो हमें perfection of life is to give up this material body and get spiritual body in the spiritual world. So यही मैं यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं कि one who is not renounced, ये desirable and desirable and mixed जो है, they will accrue after death. ये आएंगे, death के बाद आएंगे, continue रहेंगे. अब उसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं कृष्णा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है. ये आप लोगों को बहुत ही प्रैक्टिकल लगेगा. आपके लिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं कि हमें एक्टिविटीज करते हैं हम लोग, तो हमें रिजल्ट चाहिए होता है. करेक्ट. एक्टिविटीज का रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटीज? सो यहाँ पर कृष्णा बता रहे हैं पंचयता. ये श्लोक याद करना आप लोगों को, ये 13th and 14th, और 5th वर्स भी याद करना, जिसमें कृष्णा ने बोला है कि न त्याज्यम कार्यमेव तत् पावनानि मनीषिणा. लास्ट लाइन है पावनानि मनीषिणा. यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणा. सो यज्ञ दान और जो तप है वो गिव अप नहीं करना है. ये तो जो वाइज, जो लर्नेड मैन है, ग्रेट मैन है, उनको भी ये प्यूरिफाई करती है. वो वाला श्लोक और ये दोनों श्लोक याद करने हैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्. सो इसमें कृष्णा क्या बोल रहे हैं? पंचैतानि, देयर आर 5 फैक्टर्स. कारणानि निबोध में, हु आर द कॉज. कारण मतलब कॉज. कॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कारण. सो पांचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में. सो निबोध मतलब रिफ्लेक्ट. ओ महाबाहो अर्जुन, प्लीज रिफ्लेक्ट द कॉज. देयर आर 5 कॉजेस. सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, ये सांख्य योग में बताया गया है. सिद्धये सर्व कर्मणाम, जिससे सारे कर्म सिद्ध हो जाते हैं, परफेक्शन अचीव करते हैं, रिजल्ट जिससे मिलते हैं. कौन कौन से 5 फैक्टर हैं? पहला अधिष्ठानम. प्लीज नोट दिस. अधिष्ठानम मतलब प्लेस ऑफ एक्शन. सो प्लेस ऑफ एक्शन मैटर्स अलॉट. कहाँ पर दो व्यक्ति एक्टिविटी कर रहा है. एक जो है ना, जैसे हम लोग कोचिंग करते हैं आईआईटी की तैयारी के लिए, हम लोग जाते हैं, कोटा जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं. क्यों जाते हैं? आप घर पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि घर में माहौल नहीं मिलता. कोचिंग में जाते हैं क्योंकि वहाँ माहौल मिलता है. जनरली लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं पढ़ने के लिए. क्यों लाइब्रेरी में क्यों जाना? क्योंकि लाइब्रेरी में माहौल मिलता है. सो प्लेस ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Krishna is saying the first factor which causes the result of your activity is first adhishthanam. So हमें place, सबसे पहले place देखना है कि भाई कहाँ पर हम एक्टिविटी कर रहे हैं. प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है. सो अधिष्ठानम. दूसरा कर्ता, परफॉर्मर पे भी डिपेंड करता है. 2 व्यक्ति हैं, 2 अलग अलग माइंड सेट, स्किल सेट है. सेम प्लेस हो सकता है, सारी सिचुएशन सेम हो सकती है, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आएगा क्योंकि दोनों का स्किल सेट अलग है, टैलेंट्स अलग है. सो परफॉर्मर पे भी डिपेंड करता है. सो पहला अधिष्ठानम, दूसरा कर्ता. तीसरा करणम मींस इंस्ट्रूमेंट्स. सो इंस्ट्रूमेंट भी बहुत जरूरी है. इंस्ट्रूमेंट्स अगर नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं, जैसे आप क्रिकेट बहुत बढ़िया, सचिन तेंदुलकर हैं आप, लेकिन आपको बैट नहीं दिया जाए, आपको स्टंप दे दिया जाए, स्टंप से आप बैटिंग करिए, कितना भी एक्सपर्ट प्लेयर हो, आप आउट हो जाओगे, आप नहीं खेल पाओगे. आप सोल्जर हो, बहुत अच्छा शूट कर लेते हो आप, लेकिन आपको बंदूक नहीं दिया जाए, आपको बोले ऐसे लड़ाई करो, तो यू विल बी शॉट डेड. सो इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. सो यू शुड हैव प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स. करणम. एंड सो थर्ड इज करणम. पहला अधिष्ठानम, दूसरा कर्ता, तीसरा करणम. सब लोग याद करते जाइए. तीसरा क्या है? चेष्टा. विविधैश्च पृथक् चेष्टा. चेष्टा मीन्स endeavor. Endeavor, of course, endeavor is also very important, but only endeavor, if you focus that endeavor karo. If alone endeavor is focused, then that is foolishness. There are 4 other factors also
which we should focus upon. We should understand about those things also. लेकिन आज के टाइम पे क्या है, लोग केवल एंडेवर की बातें करते हैं, मेहनत की बातें करते हैं, मेहनत करो दुनिया बदल दो. ये मेहनत अकेले नहीं करेगा. यस, एंडेवर हैज प्लेस टू प्ले, बट एंडेवर अलोन इज नॉट इनफ. जैसे बोलते हैं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. सूर जो शेर है वो अगर ये सोचे कि मैं जंगल का तो राजा हूँ, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है और मेरा जो खाना है आहार मेरे मुंह में आ जाएगा और मैं तो आराम से सोता हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा. शेर को भी इवन दो प्लेस ऑफ एक्शन बहुत अच्छा है, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत इजीली उसको उसका खाना मिल जाएगा, उसके पास सेंसेस भी हैं, वो अच्छा परफॉर्मर भी है. लेकिन अगर एंडेवर नहीं करे तो नहीं मिलेगा उसको फूड ना, राइट. सो एंडेवर तो करना पड़ेगा. सो एंडेवर इज ऑल्सो वन फैक्टर. But endeavor alone, if some nowadays people talk about endeavor alone, that is foolishness. So fourth factor is endeavor. So endeavor से पहले तीन चीजें हैं जो कि कृष्ण बता रहे हैं. प्लेस ऑफ एक्शन, दूसरा परफॉर्मर. तो आप भाई आईएएस तैयारी करने जा रहे हो आईएएस बनने के लिए, तो क्या आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो? क्या आपको चीजें याद होती नहीं और आप आईएएस बनने जा रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ somebody in your family he cracked IIT और IAS, so you are also out of illusion ignorance, so इसको ignorant के परफॉर्मर बोला जाता है. सो ऐसा नहीं करना. अगर आप परफॉर्मर हो, रियली में टैलेंट है इसके लिए, देन रिजल्ट आए. तीसरा इंस्ट्रूमेंट्स आपके सेंसेस अच्छे होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए आपके पास रिक्वायर्ड. चौथा एंडेवर, चौथे पे एंडेवर आता है. और एंडेवर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बोला, दैवम चैवात्र पंचमम. So which is the most important, the sanction of the super soul. Unless super soul sanctions, ये चारों चीज भले ही फेवरेबल है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. इसीलिए कल जो ओलंपिक में जो मनु भकेर ने रिजल्ट ब्रॉन्ज मेडल ले आई, हो बोल रही थी कि because I have heard that result is not in your hand, it is all about destiny. वो destiny word use करती, that means she had nicely understood about destiny. और destiny भगवान उसने बोला कि अगर कृष्णा bless करेंगे then only you'll get. If it is there in your destiny, Lord sanction, then only you'll get, otherwise you'll not get. Even though you are doing your best, you are putting your endeavor 100%. लेकिन आज क्या है, लोग इतने इग्नोरेंस में हैं, इतने फुल हो गए हैं कि सबसे पहले अगर कुछ टास्क बढ़ जाता है, कुछ एक्टिविटी ज्यादा आ जाती है, असाइनमेंट, तो सबसे पहले अगर चैंटिंग करना, चैंट से छोड़ देना बंद कर देंगे. बाकी चीजें नहीं छोड़ेंगे, सोना मोबाइल चलाना वो सब नहीं छोड़ेंगे, चैंटिंग छोड़ देंगे कि चैंटिंग नहीं, टाइम नहीं, हमें ये सारा प्रोजेक्ट करना, इतना सारा प्रभु जी इतना सारा प्रोजेक्ट आ गया तो इसलिए चैंटिंग रुक गई. तो सबसे पहले चैंटिंग ही छोड़ते हैं. ये तो सबसे बड़ा फूलिशनेस. भगवान की कृपा से ही आपका वो प्रॉब्लम जाता, वो प्रोजेक्ट आप अच्छे से कर पाते. भगवान की कृपा बंद कर दिया, वो इनफ्लो ही बंद कर दिया आपने, वो कनेक्शन जो था कट हो गया. अब आप इतने मूर्ख हैं कि आपने कनेक्शन ही कट कर दिया. तो अब एंडेवर जो आपको 6 यूनिट करना पड़ता आपको रिजल्ट अचीव करने के लिए, आप 10 यूनिट करो आप, और आप 10 यूनिट करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपको लगता है कि हाँ मैंने इतना मेहनत किया इसलिए रिजल्ट मिला. ओ फुल, यू आर सो फुलिश. अगर तुम कनेक्शन बना के रखते भगवान से, चैंटिंग करते डेली, तो 6 यूनिट 10 यूनिट की जगह 5 यूनिट में ही हो जाता हो. बट हम लोग ये समझ नहीं पाते, वी आर सो फूल. सबसे पहले कुछ भी आता है हम चैंटिंग छोड़ देते. दैट इज नॉट द इंटेलिजेंट वे ऑफ डूइंग, handling the situation. Intelligent way of handling situation will come in verse number 58 of this chapter only. We'll see that. So these are the 5 factors. O mighty armed Arjun, learn from me of the 5 factors which bring about the accomplishment of all action. All action. These are declared in Sankhya philosophy to be the place of action, the performer, the senses, the endeavor, and ultimately the super soul. Super soul बहुत जरूरी है. और भक्त के केस में सुपर सोल जो है डायरेक्टर का काम करता है, तो इंटेलिजेंस भी देता है कि कैसे आप करो जिससे सक्सेस मिलेगा. और जो अभक्त है उसको बुद्धि नहीं देंगे भगवान, वो अपने जो डेस्टिनी में है उसी के हिसाब से मिलेगा. डेस्टिनी में नहीं है ना, सो आप लाख कोशिश कर लो नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप भक्त हैं और अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं है और आप चाहते हैं कि मिले मुझे, सो कृष्णा विल सैंक्शन यू, ही विल गिव इंटेलिजेंस कि कैसे करो कि मिल जाए और हो जाएगा. So this is the advantage of becoming devotee.
whatever right or wrong action a man performs by body, mind or speech is caused by these 5 factors. जैसे जो भी हम बॉडी, माइंड एंड वर्ड से करते हैं, हर एक चीज किस पे डिपेंड करता है? ये पांचों फैक्टर पे. Whatever right or wrong a man performs by body, mind or speech is caused by these 5 factors. So ये 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है. Therefore, one who thinks himself the only doer, not considering the 5 factors, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are. बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन बोल दिया कृष्ण ने, राइट? तो हमें भगवान को भी कंसिडर करना चाहिए, पांचों फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए. One who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world, is not the slayer, nor is he bound by his actions. So जो जानता है ये 5 फैक्टर्स एक्चुअल फैक्टर हैं, वो खुद को नहीं मानता डूअर, 5 फैक्टर को कंसिडर करता है, so he is never entangled. Then Krishna says, now here Krishna says, knowledge, the object of knowledge and the knower are the 3 factors which motivate action. So action हम कोई कुछ करते हैं तो उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व, 3 एलिमेंट. एक तो जो कर रहा है एक्शन, है ना, एक नॉलेज है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है और एक नोअर है. नोअर मतलब जो व्यक्ति है, और एक नॉलेज है, और जो किस नॉलेज मतलब नॉलेज का ऑब्जेक्टिव क्या है. ये तीनों चीज हमारे एक्शन को मोटिवेट करती है. सो अगर नॉलेज नहीं है तो एक्शन नहीं करेंगे. सो नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड नोअर, ये 3 फैक्टर हैं जो हमारे एक्शन को मोटिवेट करते हैं. एंड द सेंसेस, द वर्क एंड द डूअर कंप्राइज द 3-fold बेसिस ऑफ एक्शन. सेंसेस, वर्क एंड डूअर. वर्क को करने वाला डूअर है, और किससे कर रहा है? सेंसेस से कर रहा है. सो ये तीनों बेसिस है एक्शन के. इन्हीं तीनों से हम एक्शन करते हैं. In accordance with the 3 modes of material nature, there are 3 kinds of knowledge, action and performers of action. Listen as I describe them. So from here we'll continue tomorrow. So here Krishna is saying now, based on 3 modes, अब 3 जो modes हैं उसके basis पे कृष्णा knowledge के बारे में बताएंगे. knowledge कैसे 3 गुणों पर आधारित है, action and performers. सो जो परफॉर्मर है वो नॉलेज के बेसिस पे एक्शन करता है. तो ये तीनों चीज, नॉलेज, परफॉर्मर एंड एक्शन. सो on the basis of 3 modes, Krishna will be explaining all these 3 things very nicely. So tomorrow we'll be discussing this. So here we'll stop. If you have any question, you can ask. Yes, Parth. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु मुझे पूछना था कि जब हम कोई एक्शन करते हैं तब हमें ये सोचना है कि हमें अगर ये रिजल्ट मिल गया तब हम इसको कृष्णा की सर्विस में लगाएंगे, या फिर हमें एक्शन करते टाइम ये सोचना है कि बस ये मेरी ड्यूटी है इसलिए हमें करना है. करेक्ट, बोथ. हमें ये बैकग्राउंड में होना चाहिए कि आई एम डूइंग दिस एक्शन फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, एंड ये बैकग्राउंड में होना चाहिए, और फोरग्राउंड में वी शुड फोकस ऑन द ड्यूटी. सो हमारे 2 तरीके के माइंड है, फोरग्राउंड माइंड, एक बैकग्राउंड माइंड. जैसे अभी आप क्लास में बैठे तो बैकग्राउंड, फोरग्राउंड में तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है. बैकग्राउंड में है कि भाई ये भगवद गीता के इंस्ट्रक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभु बता रहे हैं, सो आई शुड बी अटेंटिवली हियर. और फोरग्राउंड में आपको ये पूरा जो इंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे थे वो आपके फोरग्राउंड में ये चल रहा था. सो जैसे रैम एंड रोम होता है, रैम में प्रोसेसिंग होती है, रोम में सारा डेटा स्टोर होता है. उसी तरीके से बैकग्राउंड माइंड है और फोरग्राउंड माइंड है हमारा. फोरग्राउंड में सारा प्रोसेसिंग होता है, हम जो पढ़ रहे हैं उसको प्रोसेसिंग करते हैं, समझते हैं, और वो जाके बैकग्राउंड में सेटल होता है. सो बैकग्राउंड में ये होना चाहिए कि आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा, एंड इफ दिस अंडरस्टैंडिंग इज देयर, then even though you are in the industry, factory, and factory में लोग हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, चीजें हैं, अगर आप ये समझ के कर रहे हो, ये सोच कर रहे हो कि ये कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, so nothing is material, even that industry is not material, even those people are not material, everything becomes spiritual because you are doing for Krishna, right? Okay प्रभु. Did you get your answer? Yes प्रभु. Anybody else has any question?
हमें ये आज के टॉपिक्स में जो हमने डिस्कस किया, एक तो यज्ञ दान तप, ये हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, हमें हमेशा इसको फॉलो करना है, वी शुड कंटिन्यू डूइंग दिस। एंड दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, रिजल्ट को रिनाउंस करना है, एक्टिविटी को रिनाउंस नहीं करना है, वी शुड नॉट रिनाउंस द एक्टिविटीज, एक्टिविटी हमें करनी है, और एक्टिविटी आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ ट्रबल्स और आउट ऑफ इग्नोरेंस वी शुड नॉट गिव अप, ड्यूटी हमें करते रहना अपनी, और ये सोच करना कि आई एम डूइंग इट फॉर कृष्ण। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस किया, देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन व्हिच डिसाइड द रिजल्ट ऑफ एनी एक्शन। पहला अधिष्ठानम मतलब प्लेस ऑफ एक्शन, दूसरा कर्ता मींस परफॉर्मर, तीसरा कर्ण मींस इंस्ट्रूमेंट, चौथा एंडेवर, पांचवा सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। अगर आप डिवोटी हैं तो छठवां फैक्टर काम करता है, दैट इज कृष्णा गिव्स यू डायरेक्शन आल्सो। पांचवे में ही परमात्मा जो कर्मी है उसको डेस्टिनी के बेसिस पे देते हैं, लेकिन जो भक्त है उसको इंटेलिजेंस भी देते हैं कि कैसे अचीव करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने डिस्कस किया आज के क्लास में। कल अब अगेन कृष्णा विल बी स्पीकिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि जो परफॉर्मर है कभी कभी वो चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है, नहीं कर पाता, तो किस तरीके का परफॉर्मर है। परफॉर्मर के क्या क्या लेवल होते हैं, तो हमें कौन सा परफॉर्मर बनना है और कौन सा नॉलेज हमें फॉलो करना चाहिए, एंड इस तरीके से कौन सा एक्शन करना चाहिए। एक्शन कौन सा अबॉमिनेबल एक्शन है, कौन सा गुड एक्शन है, दिस आल्सो वी शुड नो दिस। एंड आफ्टर दिस 3 नॉलेज कृष्णा विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट हैप्पीनेस आल्सो, कि 3 तरीके का हैप्पीनेस भी होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आने वाले हैं बहुत अच्छे से, विल डिस्कस इट इन टुमारोज क्लास। ओके, सो हियर विल स्टॉप। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।